Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at their places. Today's topic is parts of a computer. Objectives of learning: to identify all parts of computer, to recognize the other parts of computer, to understand the function of parts of computer. तो इसमें हम कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स, किस तरीके से वो फंक्शन करते हैं, किस चीज़ में वो हेल्पफुल होते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे. We have read so far that to perform various activities, we require different parts for specific functions. Similarly, computer also has various parts that perform particular tasks. So, हर एक कंप्यूटर में भी बहुत सारे parts होते हैं जिनके specific task होते हैं. Following are the various parts of computer. 1. Monitor, 2. CPU, 3. Keyboard, 4. Mouse. तो आपके CPU, monitor, keyboard ये सारे आपके कंप्यूटर के ही parts होते हैं. Monitor. A monitor is an output device which is used to display the output on its screen. Information displayed on the monitor is also known as soft copy. It is also known as VDU, Visual Display Unit. It looks like a television screen. तो सबसे पहला आपका कंप्यूटर का पार्ट है मॉनिटर. इसमें आपकी चीज़ें डिस्प्ले होती हैं जिसे VDU यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है. इसमें आपकी जो भी चीज़ें आपने सामने कमांड कर रखी हैं वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाती हैं. जितनी भी चीज़ें आपको बीट अ डॉक्यूमेंट और एनीथिंग ये आपको जो मॉनिटर पे दिखाई देती है वो एक सॉफ्ट कॉपी होती है. CPU, Central Processing Unit. CPU is the brain of a computer. It contains all the circuitry needed to process input, store data, and give output results. It is used in controlling all parts of a computer. A CPU cabinet is also known as CPU box. फिर आपका Central Processing Unit यानी कि CPU आ जाता है जो कि कंप्यूटर का ब्रेन होता है. इसी में आपके सारे जो भी डेटा होता है, इनपुट होता है, वो एंटर होता है, प्रोसेसिंग होती है और फाइनली आपको एक आउटपुट मिलता है. Keyboard. A keyboard is an input device which is used to type words and numbers into the computer. It consists of 104 keys in all. Keys or buttons of a keyboard must be pressed softly. फिर आपका कीबोर्ड जो कि एक इनपुट डिवाइस होता है, इसके थ्रू आप अलग अलग कीज को कमांड कर सकते हैं. वर्ड्स, नंबर्स, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं. टोटल आपकी 104 कीज होती हैं और कीबोर्ड में जितनी भी कीज होती हैं आप सॉफ्टली भी अगर उनको प्रेस करेंगे तो वो आसानी से कमांड कंप्यूटर पे आपको दिख जाएगा. Mouse. A mouse is an input device which is used to draw pictures and select objects on the monitor screen. It is also known as pointing device. It has 2 buttons and a scroll wheel. It works by clicking and its point is shown on the monitor screen. फिर आपका माउस आ जाता है जो कि आपके मॉनिटर जो होता है, मॉनिटर स्क्रीन पे जो आपको एक कर्सर दिखाई देता है, एरो जैसा साइन, उसको मूव करने के लिए अलग अलग आइकन्स को सिलेक्ट करने के लिए यूज करा जाता है. इसमें 2 कीज होती हैं, लेफ्ट और राइट कीज होती हैं, बीच में एक स्क्रोल व्हील होता है जिसके थ्रू आप किसी भी पेज को अप डाउन कर सकते हैं. Critical thinking. Think and write more parts of computer that you have seen in your daily life. तो अभी तक हमने जितने भी पार्ट्स पढ़े हैं उसके अलावा अगर कोई पार्ट आपने कंप्यूटर का देखा है तो आपको उसके नाम यहाँ पे लिख देने हैं. Other parts of a computer. इसके अलावा भी कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. There are some other parts of computer as well which are as follows. Scanner. A scanner is an input device which is used to scan the images and send them to a computer. Scanner जो होता है कंप्यूटर में प्रेजेंट होता है या आपकी इमेजेस होती हैं या कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट होता है उसको स्कैन करके कंप्यूटर पे रिप्रेजेंट करता है, रिफ्लेक्ट करता है. Printer. A printer is an output device which is used to give output result on a paper. The information that we get on the paper is called hard copy. जो आपका प्रिंटर होता है कंप्यूटर का पार्ट, ये एक आउटपुट डिवाइस होती है जो आपको रिजल्ट देता है पेपर पे. कंप्यूटर पे आपकी कोई भी चीज़ अगर आपको वो सॉफ्ट कॉपी होती है, हार्ड कॉपी यानी कि पेपर पे निकालना है तो आप उसको प्रिंटर से यूज करते हैं, प्रिंटर का यूज करते हैं. Microphone. A microphone is an input device which is used to record the voice and send it to the computer. जो माइक्रोफोन एक छोटी सी डिवाइस होती है उसके थ्रू आप कोई भी चीज़ बोलते हैं या कमांड करते हैं तो वो कंप्यूटर में जाके फीड हो जाती है.
Speaker. A speaker is an output device which is used to give output in the form of sound. We can listen to music on the computer with the help of speakers only. तो कंप्यूटर की एक आउटपुट डिवाइस होती है स्पीकर्स. अगर आपको कोई भी चीज़ सुननी है जो कि आपके कंप्यूटर में प्रेजेंट है तो आपको स्पीकर की ज़रूरत पड़ेगी. जैसे कि आप वीडियो देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, तो साउंड को कैप्चर करने के लिए आपके पास एक स्पीकर होना चाहिए. UPS. An uninterruptible power supply. UPS is the battery of a computer which allows a computer to run when there is no power supply. फिर आपका UPS आता है uninterruptible power supply. ये आपके कंप्यूटर का तब यूज होता है जब सडनली आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो आप कोई भी अगर काम कर रहे हैं सडनली वो खत्म ना हो जाए, सारा का सारा आपने जो मेहनत करी है, काम आपने स्टोर कर रखा है, वो डिलीट ना हो जाए, तो यूपीएस उस केस में यूज होता है. आप फटाक से अपना जो भी काम है या सामान है उसको सेव कर सकते हैं. जॉयस्टिक. A joystick is an input device which is used to play games on the computer. तो joystick एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको यूज करके कनेक्ट करके आप कंप्यूटर पे कोई भी चीज खेल सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं. Web camera. A web camera is an input device which is used to capture and transmit video over the internet over a computer. फिर आपका आता है वेब कैमरा. ये कंप्यूटर में ही प्रेजेंट होता है. इसके थ्रू आपको कोई वीडियो कॉल किसी को करना है या वीडियो को कैप्चर करना है, किसी को सेंड करना है, ट्रांसमिट करना है, तो आप वेब कैमरा के थ्रू से कर सकते हैं. Let's revise. There are four main parts of a computer, namely monitor, CPU, keyboard, and mouse. Apart from main parts of a computer, there are various other parts that are connected to a computer for further functioning. UPS stands for uninterruptible power supply. VDU stands for visual display unit. CPU stands for central processing unit, which is also known as brain of computer. तो आपके कंप्यूटर के बेसिकली चार पार्ट्स होते हैं: मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड एंड माउस. CPU आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है. उसके अलावा आपका VDU होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जो कि आपको मॉनिटर पे दिखाई देता है. उसके अलावा आपका UPS होता है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई. इलेक्ट्रिसिटी अगर चली जाती है तो भी आपका कंप्यूटर कुछ देर के लिए बिना इलेक्ट्रिसिटी के रन कर सकता है. सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेस आपको खुद से करनी है.